Good morning, students. This video is for class 10th, and as you all know, we are revising our syllabus for half yearly exam. This the third chapter of Footprints book, Footprints Without Feet, is the Midnight Visitor. This chapter is written by Robert Arthur. First of all, go through the summary of that chapter, and later on I will provide you some important questions that will be most important for your board exam. So be careful and listen to this beautiful story. Okay. The story, The Midnight Visitor by Robert Arthur, depicts how peasants try to outsmart each other. मतलब इसमें दो सीक्रेट एजेंट की कहानी है ये, और दोनों ही एक दूसरे को ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने स्मार्ट हैं, चालाक हैं. Ozavel, a secret agent, is surprised to find another secret agent in his hotel room. When he enters it along with Fowler, Fowler कौन है? Who is a writer, जो राइटर है इनके बारे में लिखने आया है, तो उसके साथ जब वो एंटर करते हैं अपने रूम में तो वो वहाँ होता है. दैट सीक्रेट एजेंट मैक्स, who is holding a small automatic pistol in his hand. Max had come to get a very important paper, which was to be delivered to Ozavel within half an hour. आधे घंटे में कोई इम्पोर्टेंट पेपर है जो ओजावेल को मिलेगा. वो पेपर वो मैक्स लेने आया है. ओजावेल गिव्स द इम्प्रेशन टू मैक्स दैट देयर इज़ अ बालकनी अंडर द विंडो. विंडो के नीचे बालकनी है, ये उसको पक्का यकीन दिला देता है. देन देयर इज़ अ नॉक एट द डोर. उसके बाद डोर पे एक नॉक होता है. ओजावेल टेल्स मैक्स दैट देयर मस्ट बी द पुलिस एट द डोर. और ओजावेल कहता है कि मैक्स को कि दरवाजे पे कौन होगा, तो पुलिस होगा. देन accordingly Max jumps out of the window which is without a balcony. तब मैक्स क्या करता है, विंडो के बाहर जंप करता है बालकनी के अंदर, बट वहाँ कोई बालकनी नहीं होता है. दिस इज़ हाउ ओजावेल इज एबल टू आउटविट मैक्स. ओके, दिस वाज द short, very short. Now we will go through the summary of the chapter. The secret agent Ozavel was very fat man who lived in a gloomy French hotel. Gloomy French hotel, what do you mean by that? There was no, that room was not very bright. Means you can say that was a dull room. There was no much light in that hotel room. Okay. He could speak French and German just tolerably good with an American accent. मतलब वो फ्रेंच भी बोल सकता था, जर्मन भी बोल सकता था, लेकिन दोनों के बोलने में इसका जो अमेरिकन वाला टोन है ये झलक जाता था. He comes across Fowler, a writer who thinks that secret agents are romantic and mysterious persons. अब फॉलोअर को ऐसा एक उम्मीद है कि सीक्रेट एजेंट जो होते हैं बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन होते हैं, मिस्टीरियस रहस्यमयी पर्सन होते हैं. कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, डेंजरस एक्टिविटीज़ होता है उनका. तो इस बारे में उनको लिखने का मन है, इसीलिए वो उनसे मिलते हैं. Ozavel tells Fowler that the latter might be disappointed to spend a dull evening with a fat secret agent in a French music hall. और ओजावेल उनको कहता है कि तुम शायद कहीं मेरे साथ बोर फील करोगे. तुम तो जानते हो, तुम सोच रहे होंगे कि सीक्रेट एजेंट ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मैं देखने में भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता हूँ. आई एम अ वेरी फैट मैन. तो ऐसा कुछ बताता है उसको. But he assures Fowler
that he will be happy to see a very important paper in his hotel room. अब होटल रूम में लेके जाना है उनको, तो इसलिए वो कह रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर तुम देख करके बहुत ही खुश होगे. For which many men and women have risked their lives for to get it. मतलब वो पेपर लेने में बहुत सारे लोग अपने लाइफ लगा दिए हैं, जीवन लगा दिए हैं. Someday this paper may well affect the course of history. और कुछ दिन बाद ये पेपर जो है हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड कायम करेगा, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट पेपर है. तो अब दोनों ही कहाँ जाते हैं? अपने उस होटल रूम में. चलिए हम लोग भी चलते हैं साथ उनके. When both of them entered Ozabel's hotel room, Ozabel closed the door. When he switched on the light, he was surprised to see another secret agent, Max, holding a small automatic pistol in his hand. जब वो लोग अपने रूम में एंटर किए और दरवाज़ा बंद कर दिए, उसके बाद उन्होंने लाइट को स्विच ऑन किया तो अपने कमरे में देख रहे हैं किसको? दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स था वहाँ, और उसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल था. ओजाबेल डिडंट शो एनी साइन ऑफ पैनिक. मतलब डरने का कोई भी डरने वाली बात वो उसके चेहरे पर नहीं दिखा. ही आस्क्ड मैक्स व्हाट फॉर ही हैड कम टू हिज रूम. अब ओजाबेल उससे पूछ रहा है मैक्स से कि तुम मेरे रूम में क्यों आए हो? व्हाट इज़ द रीज़न you came here? Max told Ozabel that he had come to get the report concerning some new missiles which is being brought to him in his room. मतलब और मैक्स कहता है कि मैं वो पेपर लेने आया हूँ जो कॉन्फिडेंशियल पेपर है और मिसाइल के बारे में है. Ozabel moved to an armchair and sat down heavily. मतलब एक आर्म चेयर को खींचा और उस पर आराम से बैठ गया वो. देन ओजाबेल टोल्ड मैक्स दैट फॉर द सेकेंड टाइम. तब ओजाबेल उसको बता रहा है मैक्स को कि ये दूसरी बार है जो क्या हुआ. इन द मंथ somebody had entered his room through that balcony. अब वो कह रहा है कि ये दूसरी बार है कि कोई उसके रूम में एंटर कर गया है उस बालकनी से होकर के. दिस बालकनी सेड ओजाबेल सेड वॉज नॉट हिज बालकनी. और जिस बालकनी से आते हैं लोग वो इसके अंडर नहीं आता है, इस रूम का बालकनी नहीं है वो. बट इट इज़ द बालकनी ऑफ द नेक्स्ट अपार्टमेंट का वो बालकनी है. विच नाउ एक्सटेंड्स अंडर हिज विंडो. जो इनके विंडो के नीचे तक एक्सटेंडेड है. ओजाबेल रिपीटेडली टॉक्ड अबाउट द बालकनी. मतलब एक टाइम नहीं, वो बार बार बालकनी की बात किए जा रहा है. बट इन फैक्ट देयर वॉज नो बालकनी एंड ओजाबेल जस्ट बीइंग टैक्टफुल. मतलब ट्रिक वो कर रहा था कि वो इस बात को यकीन कर ले और आगे तो आने ही वाला है दरवाजे पे कोई, जिसके कारण वो बालकनी में जंप करेगा और गिर जाएगा. आफ्टर सम टाइम देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर. ओजाबेल स्माइल्ड एंड सेड दैट इट मस्ट बी द पुलिस. ही हैड अरेंज्ड फॉर द पुलिस, ही टोल्ड मैक्स. अब जब दरवाजे पे नॉक हुआ तो ये ओजाबेल जो है वो कह रहे हैं कि ये पुलिस ही होगा, क्योंकि उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा पेपर कुछ क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट पेपर जब आएगा तो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की सपोर्ट होगी, इसलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था. व्हेन देयर वाज नॉकिंग अगेन एंड अगेन एट द डोर, ओजाबेल आस्क्ड मैक्स व्हाट ही इंटेंडेड टू डू नाउ. जब बार बार रिपीट नॉकिंग हो रहा था दरवाजे पे तो ओजाबेल मैक्स से कह रहा है तुम अब क्या करोगे, बोलो. दरवाज़ा खोल देंगे तो तुमको शूट कर देगा, और नहीं भी खोलेंगे तो वो लोग दरवाज़ा तोड़ के आएंगे और तुमको देखेंगे रूम में तो वो शूट कर सकते हैं. सो व्हाट विल यू डू? ओजाबेल टोल्ड मैक्स that even if he didn't open the door,
The policemen would enter and they might not hesitate to shoot. मतलब उसको कोई हेजिटेशन नहीं होगा पुलिसमैन को शूट करने में. Max was enraged and he backed. Max was enraged and he backed toward the window. Toward the window with his hand behind him. He opened the door and put his legs out in the darkness of the night. मतलब कि वो हड़बड़ा करके खिड़की पे बैठा, अपने पैर खिड़की के बाहर किया, और खिड़की के बाहर तो नाइट हो गई थी, डार्क था, पूरा अंधेरा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था. He told Ozabel to send the policeman away or else he would shoot. और मैक्स जो है ओजाबेल को कहता है कि तुम पुलिस को बाहर भेजो, नहीं तो मैं तुमको शूट कर दूंगा. तब क्या होता है? When Max heard the door knob turned, जब दरवाज़ा का नॉब जो है, कुंडी जो है, टर्न किया गया, मतलब ओपन किया गया, he hurriedly pushed with his left hand to free himself. वो अपने आप को जंप किया बालकनी में. On the other hand, pushed left hand free himself. Okay, अपने आप को फ्री किया वो. उसके बाद है then as he stopped to the balcony, a loud cry was heard because there was no balcony. कोई बालकनी था ही नहीं वहाँ. On the other hand, on the door, instead of policeman, a waiter appeared with the tray. पुलिसमैन वहाँ थे नहीं. कौन था? तो एक वेटर था जो ट्रे लेकर के वहाँ पे आया था, जिसको ऑर्डर दिया था इन लोगों ने, ओजाबेल ने. और वो ट्रे में क्या था? अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस. एक बोतल था और 2 ग्लास था. ओजाबेल टोल्ड फॉलर नॉट टू वरी अबाउट द मैन ऑन द बालकनी. और ओजाबेल फॉलर को कहता है कि तुम उस इंसान की चिंता मत करो जो बालकनी में गया है. एज ही वुड नॉट रिटर्न. क्यों? क्योंकि वो कभी रिटर्न नहीं होगा. सो दिस वॉज द स्टोरी. एंड नाउ in my next video I will provide you the important questions of this chapter. So till then, thank you, have a nice day, and you must go through the chapter. Okay, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. वी विल एक्सप्लेन in my next video. Thank you, have a nice day.